entrance examination. Okay, so in MBA entrance examination, the mode of examination of course online, because this has become new normal now, right? अभी तो यार बोर्ड, शायद बोर्ड के एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो जाए, तो हमारे MBA MCA एंट्रेंस की तो बात ही नहीं है. सो वी हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड दिस थिंग क्वाइट इयर्स बैक. सो दीज एंट्रेंस एग्जाम विल बी ऑनलाइन मोड. ओके, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, MBA का जो एंट्रेंस एग्जाम है CET का, उसका ड्यूरेशन होता है 150 मिनट्स. MCA का ड्यूरेशन होता है 100 मिनट्स. ओके, सॉरी 90 मिनट्स. ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस MBA के एंट्रेंस एग्जाम के लिए होते हैं 200, MCA के लिए होते हैं 100. नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं? बट ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट इज MCQs, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट? तो हमें कुछ डिस्क्रिप्टिव चीजें लिखनी नहीं होती है. ओके, MBA के लिए फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट +1. MCA के लिए यहाँ पे एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग होता है, राइट? सो whenever if you are going for MCA entrance exam, so आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है, you have to keep this point in your mind that आप जय माता की नहीं कर सकते, राइट? आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब सोच समझ के देना पड़ेगा. बट इन MBA एंट्रेंस एग्जाम कुछ क्वेश्चन के आंसर हम लोग ढगात गोळी मारू शकतो, राइट? सो this will be the way. And of course medium of examination, but obvious it will be English, right? So till this point is everything clear, students? Yes. Okay, and see, it's not a thing that you can't speak. If you have query or if you want to ask something in between, you can raise your hand and speak, and you can tell me your name, because see, whenever I'm sharing the screen, I'm not able to see the Microsoft Wala window, right? So I don't know who is speaking. So it will be really great if you tell your name and speak up. Okay, so shall we begin? Yes. Okay, so structure. Okay, so MBA CET, what is the structure of MBA CET? Okay, so MBA or MCA CET is always divided into 3-4 parts. Okay, I'll first explain the structure of MBA CET. So MBA के CET में structure होता है, sections होते हैं, sections, 4 sections, that is analytical and logical reasoning, abstract reasoning, verbal usage and reading comprehension, that means English, or quantitative ability means maths. Okay, in layman language, okay, in easy language it is English or maths for us. Okay, so most probably सबसे बड़ा part, right, कौन सा होता है MBA के CET में? एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग. मोर देन 35% ऑफ योर क्वेश्चंस ऑफ योर क्वेश्चन पेपर contains analytical logical reasoning questions. Okay, then comes the part is English. Okay, so English and quantitative ability is like 25%. Okay, so always keep it in mind that 50% of your MBA CET is about or it revolves around logical reasoning. Okay, so you have to prepare for logical reasoning very well. If you really want to excel, if you really want to have good score in MBA CET, you have to prepare on these topics very well. Okay, so number of questions and marks, each and every question contains 1 mark and number of questions are given. For MCA CET, okay, for MCA CET, the structure, number of questions are 100 only. Okay, in mathematical section, you have 30 questions. In computer, there is one more additional thing in MCA CET, that is computer based question. Okay, computer के knowledge पे आपको questions है, because it is quite natural as you are taking admission for a कंप्यूटर कोर्स, तो बट ऑब्वियस आपका एंट्रेंस एग्जाम में वो क्वेश्चंस होंगे. सो 20 क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज, 20 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज इंग्लिश, वर्बल यूसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? सो 40 क्वेश्चन, देन 30 क्वेश्चन ऑन लॉजिकल रीजनिंग, एंड देन 30 क्वेश्चन ऑन योर मैथमेटिक्स और स्टैट्स. सो MCA एंट्रेंस एग्जाम का जो स्टैट्स या मैथ्स का सेक्शन होता है वो लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है. सो उसके जो टॉपिक्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपने जो 11th 12th में मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है उसमें से वो चैप्टर्स होते हैं. एंड अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड स्पीड,
टाइम एंड वर्क. ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस, इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस होते हैं. ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क, सो दैट्स व्हाई क्वेश्चंस 100 ही होते हैं, बट एग्जाम 200 मार्क्स की होती है, एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, राइट. तो एमबीए और एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न या स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया? इज देयर एनी क्वेरी टिल दिस पॉइंट? It is clear, ma'am. Okay, thank you so much. Is it Rutuja? Yes, I am Rujuta Bedekar. Okay, great. Thank you so much, Rujuta. Okay, so I'll just quickly cover what are the different topics in these different sections. Okay, so if you see what is analytical and logical reasoning, so in analytical and logical reasoning there are some topics like arrangement kind of things, right? There are some questions, for example, 6 people are sitting in a circle, or some people are sitting in a row facing this word. So we have to find who is sitting where, okay, who is sitting besides whom, right? So these types of question comes in arrangement kind of questions. Okay, direction based question, we are going to discuss today this direction based question. So there are questions, for example, someone has walked towards north for a few kilometers, then turned right, for then walk for 2 kilometers again. Now at what point he is? So we have to find in which direction that person is. So these questions are direction based question. Then blood relationships, right? We never knew that कि अगर हमें बहुत सारे रिलेशन, लाइक वी हैव टू मेनी रिलेटिव्स, तो उनका रिलेशंस के नाम पता होने भी हमें मार्क्स दिलाएंगे, राइट? सो ब्लड रिलेशनशिप्स पे क्वेश्चन होते हैं, राइट? सो उस पे क्या क्वेश्चंस होंगे, विल अगेन डिस्कस. सिलॉगिज्म और वेन डायग्राम्स क्वेश्चन, राइट? वहां पे भी होते हैं वेन डायग्राम्स, लाइक सर्कल्स वाले जो डायग्राम्स होते हैं, राइट? सो उसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. कोडिंग डिकोडिंग होता है, राइट? जैसे कि अभी आई गेस ऋषिकेश ने एक्सप्लेन किया कि लेटर्स और अल्फाबेट का मिक्सचर होता है, एंड देन वी हैव टू फाइंड. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर इन डिटेल टुडे. डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ डेटा दिया हुआ होता है, एंड देन वी हैव टू, लाइक वो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, राइट, वो करना होता है हमें. देन सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज. Abstract reasoning means those questions which comes in the form of diagrams, right? बहुत सारे like 4 या 5 डायग्राम्स दिए होते हैं और आपको नेक्स्ट डायग्राम पहचानना होता है, या फिर 2 डायग्राम्स दिए होते हैं, बीच में एक ब्लैंक दिया होता है, एंड देन अगेन 2 डायग्राम्स आर देयर. सो यू हैव टू फाइंड द what will be the missing diagram. Okay, एनालॉजीज दिए जाते हैं, राइट? दो चीजों का एक अपने आप से कोई तो कनेक्शन होता है. यू हैव टू फाइंड दैट एनोलॉजी, एंड फिर आपको थर्ड वर्ड जो दिया है उसमें उसका क्या रिलेशन आएगा और उसका कैसे वो वर्ड होगा, दैट यू हैव टू फाइंड अबाउट इट. वर्बल एबिलिटी, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर आएगा, राइट? पैसेज के ऊपर आपको आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, वो आंसर्स आपको बताने होंगे. पैरा जंबल्स आएगा, पैराग्राफ कंप्लीशन आएगा. एक पैराग्राफ दिया होगा, बीच बीच में कुछ मिसिंग वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, या वर्ड्स के प्रॉपर फॉर्म्स आपको यूज करने होंगे. तो एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे बता देती हूँ स्टूडेंट्स. व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई मीन पैसेज होता है, पैसेज पढ़ के उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं. तो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, कभी भी पहले पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चंस पे मत जाओ. ओके, पहले क्वेश्चंस पढ़ लो एंड देन रीड द पैराग्राफ. सो आप जब क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ रीड करोगे तो आपको जल्दी आंसर्स मिलेंगे. आर यू गेटिंग इट? Yes, no, students, are you getting it? Yes. Thank you. Please be attentive and please be responsive. So तो आपको पैसेज पहले क्वेश्चंस पढ़ने एंड देन गो फॉर पैसेज. ओके, देन कम्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी. क्वांटिटेटिव एबिलिटी में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. whatever the maths we have learned from standard 1st to standard 8, 9, बस वही मैथमेटिक्स. नॉट even I will say not even 8 और 9, आपने 6, 7 स्टैंडर्ड तक जितना मैथमेटिक्स पढ़ा है, बस उतना मैथमेटिक्स अगर आप सिर्फ वो नॉलेज ब्रश अप कर लो ना,
तो you will really excel in quantitative ability section. Okay, in quant section you will really excel. Okay, so उसके लिए कुछ नहीं करना है. I'll tell you a very simple thing. I won't even ask you to go for RS अग्रवाल और बहुत बड़े बड़े कोई बुक्स के लिए भी नहीं बताऊंगी. What you should do, आपके घर में अगर आपके कोई सिबलिंग्स है या आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो 4th 5th स्टैंडर्ड में है, 6th स्टैंडर्ड में है, you can just take their notebooks. ICSE के होंगे या CBSE. As I'll more prefer ICSE books. Okay, because ICSE के अगर आप मैथमेटिक्स के बुक्स लोगे those books are very very डिस्क्रिप्टिव. ओके, तो अगर आप वो बुक्स पढ़ोगे तो उसमें से भी आपका क्वांट सेक्शन का प्रिपरेशन हो जाएगा. ओके, या फिर यू कैन गो फॉर 5th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड के जो स्कॉलरशिप के एग्जाम्स के बुक्स होते हैं, राइट, यू कैन रेफर दोज बुक्स ऑल्सो, और आपका उसमें से भी स्टडी हो सकता है. आर यू गेटिंग इट? Yes. So these are the some some sections, and these are the different topics which comes in these sections. So till this point, is everything okay? Is anybody has any query? No. Any questions? So should I take it ahead? Yes. Thank you. Okay, so this is what exactly these are some tips how to solve abstract or logical reasoning questions. Okay, so see, whenever you have to solve logical reasoning questions, okay, for example abstract reasoning मैंने that means मैंने आपको बताया कि कुछ diagrams दिए हुए होते, right? So you have to find the pattern of the diagram. So what will be the next diagram, or what will be the missing diagram? So never ever attempt or never ever start your question paper with these questions. Okay, skip these questions for at the end, to solve this question at the end. Okay, why is it so? क्योंकि जब भी आप abstract reasoning के question, I mean जो diagram based question है, उनको solve करने जाते हो तो problem क्या होता है, आप you get tired. Okay, I mean not you, but your eyes get tired. Okay, तो that's why आपका reading speed कम हो जाता है, and whenever you go for next question, okay, तो आपका reading speed कम हो जाता है, even आपका brain भी tired हो जाता है, तो आप ज्यादा questions आगे जाके solve नहीं कर पाते हो. Because एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? आपकी रीडिंग स्पीड. बिकॉज क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, नंबर लाइक मिनट्स गिवन कम है, टाइम इज लेस, राइट? तो whenever you are going for any entrance exam, okay, always keep it in mind that it's a standard formula that you have to solve each and every question within 45 seconds. I mean आपको क्वेश्चन रीड करके उसके बाद उससे पढ़ना भी है, उसे सॉल्व भी करना है और टिक मार्क भी करना है क्वेश्चन को, राइट? I mean you are quite fortunate people that you just have to click, okay, and even you can check the question again after clicking it. But when at my time when I gave my exam, we had to circle those dots. Okay, वो OMR sheet आती थी और उसमें हमें सर्कल करना पड़ता था ब्लैक एंड, तो उसमें भी काफी टाइम चला जाता था. वी यूज टू हैव सो मेनी ट्रिक्स की वो जेल वाला बॉल पेन यूज करते हैं, उससे जल्दी से वो ब्लैक हो जाता है एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट? सो यू ऑल आर क्वाइट फॉर्चुनेट कि आपको जस्ट एक क्लिक करना है, वो विद इन सम माइक्रो सेकेंड्स आपका क्लिक हो जाता है एंड यू कैन just save your answer, right? So these are some tips. There are some tips for coding and decoding question that we are going to discuss in detail in our next slide, right? So यहाँ तक कोई question, कोई queries है? No, ma'am. Am I going too fast? Is my speed okay? Is my pace okay? Yes. Okay, thank you. And I hope that you are noting down these points, because students, what happen whenever we learn or whenever you listen these things, you feel that हाँ ये तो याद रह जाएगा, ये तो बहुत easy चीज है.
बट वेन एवर यू एक्चुअली गो फॉर एग्जाम और जब एक्चुअल में हमें चीजें करनी पड़ती है, वी फॉरगेट अबाउट दीज थिंग. सो प्लीज एवरीवन, if you don't have pen and paper with you, please take pen and paper with you right now, okay? And take pen and paper and note down these things, okay? So I'll give you a minute to take pen and paper, okay? Does everyone has pen and paper with them right now? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Those who don't have, those who doesn't have, please bring your pen and paper. It is very, very important. Okay. So first, today we are going to discuss a very important topic from your maths section. See, now roughly what I'll say, हम जो MBA या MCA के CET के जो सेक्शंस है ना, हम उन्हें रफली अभी नाम देंगे मैथ्स सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, लॉजिकल सेक्शन. ओके? Yes. Okay, thank you. Okay, so whenever you are practicing or whenever you are preparing for maths, okay, I know कि हम so many time it happens that कि 10th के बाद बहुत सारे लोगों का शायद maths नहीं होता है, okay. And here generally I'm speaking about for MBA students, okay. MCA के जो students है, but obvious उनके लिए compulsory होता है ग्रेजुएशन में एक मैथ्स का पेपर होना, एक सब्जेक्ट होना मैथ्स का, राइट. बट फॉर एमबीए इट इज नॉट अ कंपल्शन. सो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि 10th के बाद हम लोगों ने मैथ्स को देखा नहीं होता है. दो इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, आपने मैथ्स नहीं लिया होता है. इफ यू आर इनटू डिफरेंट ग्रुप, आप केमिस्ट्री लेते हो, फिजिक्स लेते हो, कंप्यूटर्स में जाते हो या फिर और कुछ सेक्शंस लेते हो, बट मोस्ट प्रॉब्ली मैथ्स से हमारा रिश्ता टूट जाता है 10th स्टैंडर्ड के बाद, राइट. और ये आई मीन इट्स अ रूल, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर. जो चीजें हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो चीजें हम भूलने लग जाते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब ये एंट्रेंस एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये टॉपिक्स आपको डिस्कस करने पड़ते हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट. हम लोग भूल जाते हैं कि क्या हमें बात कर रही है, या फिर हम हमने क्या जो सीखा है स्कूल में हम लोग भूल जाते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. ओके, सो डिविजिबिलिटी रूल्स. कितने लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स पता है या याद है? कितने सारे लोगों को? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड्स स्टूडेंट्स. डिविजिबिलिटी रूल्स पता है, याद है? वेरी गुड, राइट. So whenever you are preparing for math section, okay, मैंने last time एक चीज बताई थी. There are 2 sections in quant, okay, और maths. दो, not even section but 2 chapters ऐसे हैं. अगर आप इन chapters की practice कर लो ना अच्छे से, तो आपका और 10-12 chapters का preparation बहुत अच्छे से हो जाएगा, right. So one of the topic is percentage and the other topic is divisibility rules या divisibility chapter, okay. So अगर आप ये divisibility rules याद कर लो ना, तो आपका जो कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स का वो बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट. जैसे मैंने कहा आप लोगों को, इन एंट्रेंस एग्जाम हमें क्वेश्चन ज्यादा जल्दी सॉल्व करना पड़ता है, राइट. टाइम कम होता है हमारे पास, तो इसीलिए मैन्युअली हर चीज हम लोग मैन्युअली नहीं कर सकते. पेन एंड पेपर उठा के चीजें करना विल बी टाइम कंज्यूमिंग, तो हमें टाइम सेव करना है. सो इसीलिए ये हमें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता होने चाहिए, जिसमें से एक चैप्टर है डिविजिबिलिटी रूल्स, ओके. तो अगर कोई नंबर, सो व्हाट आर दीज डिविजिबिलिटी टेस्ट. सो डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि इफ अगर हमें चेक करना है कोई नंबर, इफ
the any number is divisible by 2 or not. So what is the divisibility of 2? If last digit of the number is even number, okay, 0 or even number, then that number is divisible by 2, right? Correct, Yes. student? Yes. Then what is the divisibility of 3? If the sum of the digit is divisible by 3, okay. For example, the number is 512. अगर आपको चेक करना है कि 512 डिविजिबल है या नहीं 3 से, ओके, विल टेक अ वेरी स्मॉल नंबर, 512 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिशनल वे में हम लोग क्या करते हैं? 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 3, देन 5 में से 3 हो गए 2, 3 7 21, वापस 2 रह गया, सो नहीं, सो उससे बेटर चीज क्या है? 5 1 2, 5 plus 1 is 6, 6 plus 2 is 8, 8 is not divisible by 3, so the whole number is not divisible by 3. Getting it? समझ में आया? Yes, ma'am. फास्ट नहीं हो रहा है ना? No, speed is slow. No. ओके, गुड. सो डिविजिबिलिटी रूल्स से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा? आप सिर्फ नंबर को देख के पता कर पाओगे कि ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं, राइट? गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय द गिवन डिजिट और नॉट. तो उससे क्या होगा? आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ओके. सो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 4, ओके. तो 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? इफ last 2 digits are divisible by 4, then the whole number is divisible by 4, okay. सबसे इजी वाला डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 5 और 10 का, ओके. 5 का डिविजिबिलिटी है if the number ends with 5 or 0, and 10 का डिविजिबिलिटी if the number ends with 10, then that number gets divisible by 10, right? So कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, lakhs में, करोड़ में, अगर उसके एंड में 0 है तो you know that this number is divisible by 10. अगर उसके एंड में 0 या 5 है तो you know that this number is divisible by 5, okay. 6 का डिविजिबिलिटी इज क्वाइट इजी. आपको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा. 2 का डिविजिबिलिटी है एंड में यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो इवन नंबर है या नहीं, एंड 3 का डिविजिबिलिटी इज सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, ओके. तो ये सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है स्टूडेंट्स, वो सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, बुक्स में आपको मिल जाएंगी, ओके. इस पे हम लोग और ज्यादा टाइम नहीं डालते हैं. ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि आपको ये जाके अभी पढ़ना है, ओके. सो मेक अ नोट ऑन योर बुक, इन योर बुक, दैट you have to do the preparation for divisibility rules when this session will end, okay. So will you prepare, students? Yes. Yes, ma'am. इतना यस, इतना बोर हो रहा है क्या सेशन में स्टूडेंट्स? आई मीन आई नो क्वांटिया मैथ्स का सेक्शन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज एज आई सेड दैट इट्स नॉट बिकॉज कि हमें आता नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज प्रैक्टिस छूट गई है, राइट? सो दैट इज द रीजन, नथिंग एल्स. सो अभी हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज मुझे पता है आप श्योरली ये सोच रहे होंगे कि मैम एंट्रेंस एग्जाम में तो इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं कि 501 इज 5, लाइक फॉर एग्जांपल 512 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, ओके. क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एंट्रेंस एग्जाम ने डायरेक्टली क्वेश्चन, दे डोंट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, वो घुमा फिरा के बातें करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई. सो लेट्स मूव अहेड, ओके. सो डिविजिबिलिटी टेस्ट पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी गेट ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट, ओके. तो सिर्फ ये देखते हैं. Okay, so this is the question, okay. So question is, can somebody read the question for me? What is the value of m? Ha, yes. Read the question. Read the complete question, please. Can someone read the question for me, please?
Yes. What is the value of m and n respectively if M390484588n is divisible by 8 and 11, where m and n are single digit integers? First option 7 8, second 8 6, third 6 4, fourth 5th 4, and fifth 4 6. Very good, very nice. Who was it? Sonali Gaikwad. Sonali, you have very nice voice projection. You know that whenever you Thank are you, ma'am. when you were speaking, it was very pleasant. Very good, very nice. Thank you so much. So yes, so how are we going to solve this question? Does anybody wants to try कि हम लोग ये question कैसे solve करेंगे? ठीक है, so I'll just tell you. See, हमें अभी अगर हमें ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं हो, पता नहीं हो, तो वी वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सो दैट्स व्हाई हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होने चाहिए. सो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? इफ last 3 digits of a number are divisible by 8, then the whole number is divisible by 8, right? 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होते हैं तो ये पूरा नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. तो सी हमें क्या करना है, बस ये चेक करना है. अगर 8 से हम लोग 58 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें? 8 7 जा होता है 56, राइट? तो यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा 2. तो n के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जो 8 के टेबल में आता है? तो दैट नंबर विल बी not 8, not 6, it will be 4, right? So because 24 is divisible by 8. So हमारे पास ये दो ऑप्शन हो गए. अभी हमें ये तो पता चल गया कि आंसर सी या डी में से ही कोई एक आएगा, राइट? करेक्ट स्टूडेंट? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. ओके. तो जैसे ही कौन बनेगा करोड़पति में हम लोग ऑप्शंस हटा देते हैं, राइट? 50-50 करते हैं. यहाँ पे भी हम लोगों ने धड़ाक से एक स्टेप में विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर 3 ऑप्शंस हटा दिए. अभी यहाँ पे हमें मिले 2 ऑप्शंस. सो वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दीज 2 ऑप्शंस. ओके. तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? आपको क्या करना पड़ता है? इवन प्लेस के डिजिट और ऑड प्लेस के डिजिट को अगर आप सब्सट्रैक्ट करें एक दूसरे में से, और अगर वो सब्सट्रैक्शन जो होता है वो 0 या डिविजिबल बाय 11 है, तो पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 11. आई नो अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी. सो यू विल हैव इट, यू विल अंडरस्टैंड इट. यहाँ तक 8 का तो समझ में आ गया आप सबको, 8 का. इसके बाद आता है 11 का. ओके. सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? If the digits at odd and even places of a given number are equal or differ by a number divisible by 11, then the given number is divisible by 11. So what exactly it is? तो ये सारे odd places के number हो गए. That means 1, 3, 5, then 7, then 9, right? So m plus 9 plus 4 plus 4 plus 8. और ये सारे हो गए odd even digits वाले number, जैसे कि 2 सेकेंड प्लेस पे है, सो सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, राइट? देन सिक्स्थ प्लेस, राइट? देन 8th प्लेस, ओके? 8th प्लेस और लास्ट वाला प्लेस. ओके. सो ये सारे इवन डिजिट के, तो इनका एडिशन कर लिया. ओके. इनका अभी n का वैल्यू हमें मिल चुका है. n का वैल्यू क्या है? 4. सो इसका एडिशन क्या हो जाएगा? 5 plus 3 8, 8 plus 8 16, 16 plus 0 0, 16 plus n के जगह पे 4. इसका एडिशन 20 आ गया, राइट? आया यहाँ तक समझ में? द एडिशन ऑफ ऑल दीज डिजिट्स इज 20, राइट? n का वैल्यू जो 4 अभी हमने यहाँ पे निकाला है, राइट? सो ये 20 हो गया, राइट? और इसका एडिशन होता है 4 plus 4 8, 8 plus 8 16, 16 plus 9 कितना हो गया? 25, राइट? सो 25 minus 20 अगर हम करते हैं तो आंसर है हमारा 5.
तो m+5, तो m में हमें m की जगह पे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा कि हमारा आंसर जो है डिविजिबल बाय 11 आए। सो m की जगह पे तो हमें अभी 6 ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यही दो ऑप्शन बचे थे। इसमें से अगर 5 लेंगे तो 5 + 5 विल बी 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो ऑप्शन हमारे पास यही बचा 6, 6 + 5 इज 11, 11 इज डिविजिबल बाय 11। सो ये m और n की जगह पे हम ये दो नंबर्स यूज करेंगे। आया समझ में? डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स? आर यू फेसिंग एनी डिफिकल्टी? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं मैम। इजी है? Easy. राइट? सो और you won't believe, बट ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये कैट के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ओके, सो जस्ट इमेजिन कि इजी होता है, जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए वी टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग, बट अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे ना इस चीजों का तो यू विल बी प्रो इन इट। ओके, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। So please, divisibility is a kind of topic on which you can really invest your time. Okay, it's a what we can say, it's a scoring topic. Okay, so now the next question is, find the greatest 5-digit number that is exactly divisible by 7, 10, 15, 21 and 28. Right? अभी आया क्वेश्चन कि बाप रे 21 और 28 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे निकालेंगे? राइट, 7 और 10 तक तो ठीक है। सो क्या करना है हमें? जस्ट सी, हमारे पास ये ऑप्शंस है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करेंगे, इसमें से चेक करेंगे कि 7 अभी 7 10 का डिविजिबिलिटी। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 10 का डिविजिबिलिटी इज द मोस्ट इजी डिविजिबिलिटी। एंड में अगर 0 है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 0। हम लोग देखेंगे यार यहाँ पे तो सारे ही नंबर के एंड में 0 है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि कौन सा ऑप्शन कट करे। राइट, तो देयर इज अ ट्रिक हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो हमारे सारे जो नंबर्स है ना, इनको हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसी को पता है व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होता है? What is prime numbers? Can somebody tell me? Prime numbers means क्या? What is prime numbers? डिवाइड होने वाला नंबर ना, डिवाइड होने वाला नंबर ना, जो हाँ, डिवाइड होने वाला नंबर ना। नहीं, प्राइम नंबर इज अ नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, ऐसा नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 3 और किसी टेबल में आता है? 1 to 1 मैम, 1 to 1, 1 to 1 भी प्राइम नंबर है ना मैम? हाँ, no, 1 to 1 is not prime number because 1 to 1 is divisible by 11. Okay? एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, ओके, और 1 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 1 डिजिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल 13, 19, राइट, ऐसे नंबर्स 23। ओके, तो जो हमारे, तो अभी ये क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो सारे नंबर्स है जिसके डिविजिबिलिटी हमें निकालने थे, उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, ये सारे द नंबर्स जिनसे हमें डिवाइड करना होता है तो उन्हें हम डिविजर्स कहते हैं। तो हम लोग ये सारे डिविजर्स नंबर को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि 10 है, 10 को हो गया 2 and 5, राइट, दैट इज 2 5 are 10। 15 है, 15 is 3 5 are 15। 21 है, 3 7 are 21। 28 है तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 7 are 28। तो हमें क्यों ये करना है? ताकि हम लोग इसे और इजी कर पाए। दैट मीन्स हमें डिविजिबिलिटी अभी चेक करना है कौन से नंबर का? 5 कॉमन है यहाँ पे, सो 3 5 3 कॉमन है 3 5 7 एंड 4। सो हमें अभी डिविजिबिलिटी चेक करना है सिर्फ 3 नंबर का, 3 4 and 7। 3 नंबर का डिविजिबिलिटी अगर हम लोग चेक कर लेंगे इन नंबर में से,
तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट के 2 डिजिट्स, इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4, सो 7 में से 4 हो गए तो 3, तो 30, सो ये दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इफ वी डू दिस 4 2 जा 8 10, ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम आए 4 1 जा 4, 6 में से 4 2, 4 5 जा 20, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये नंबर वापस हाँ नहीं पता, राइट। सो ये नंबर, सो हमारे पास अभी वापस 3 ऑप्शंस रह गए, राइट। सो ये 2 ऑप्शंस तो चले गए, हमारे पास वापस ये 3 ऑप्शंस रह गए, ठीक है। सो ये 3 ऑप्शंस में से हम लोगों ने 4 का डिविजिबिलिटी चेक कर लिया। अभी हम 3 का डिविजिबिलिटी, 9 + 9 + 9 कितना हो जाएगा, 27, 27 + 6 कितना हुआ, 30, 33 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। वापस दिस 9 + 9 + 9 कितना हुआ, 27, राइट। सो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है, से है। ये दिस नंबर 8 + 4 इज 12, 12 + 18, 12 + 18 कितना हो जाएगा, 12 + 18 कितना हो जाएगा, 40, राइट। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो और अब हम लोगों ने ऑप्शंस निकाल दिए, तो अभी हमारे पास बचे सिर्फ 2 ऑप्शन। इस 2 ऑप्शन में से हमें अभी आंसर निकालना है। तो अभी हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। सो व्हाट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 7? ओके, सो डिविजिबिलिटी ऑफ 7, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या होता है, for up to 5 digits the quickest way is to actually divide by 7, or else 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जैसे हमारा 11 का है वैसे ही ऑड एंड इवन डिजिट्स को करके, या फिर लास्ट डिजिट को स्क्वायर ऑफ करके उसमें से बाकी डिजिट में से उसको माइनस कर देते हो और देखते हैं 7 का। बट यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स है, सो वी कैन चेक कि 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, राइट। सो कौन सा नंबर है डिविजिबल 7 से, ये भी है, राइट। 7 1 जा 7, वापस यहाँ पे 2, देन 7 4 जा 28, यहाँ पे 1, 7 2 जा 14, यहाँ पे 5, 7 8 जा 56। So this is our answer. So our correct answer is number 3. आया समझ में? Are you getting it, students? Yes, ma'am. If you want, you can just quick take a snapshot. Okay, you can just take a quick screenshot of it. Okay. Just take a quick break of 1 minute, student. You can just take the picture of it. You can click the picture of it so you can practice it. Okay. हेलो मैम, हेलो Yes, yes. मैम, अभी आपने बताया था ना मैम, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी का थ्योरी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो मैम मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी का क्वेश्चन है, उसका मुझे डाउट था मैम, आप सॉल्व कर सकते हो इसका सॉल्यूशन? सेंड मानिक। क्वेश्चन, ओके। आप ये क्वेश्चन मुझे टेक्स्ट यहाँ पे चैट बॉक्स में आप भेज दो, हेलो मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगी, राइट। बिकॉज अभी हमारा टाइम नंबर खत्म हो गया है, इट वाज जस्ट एन आवर सेशन। तो जब वापस नेक्स्ट टाइम सेशन होगा, आई विल एक्सप्लेन यू दैट क्वेश्चन, और मैं आपको मेल भी कर दूंगी उस क्वेश्चन का आंसर। इज इट ओके? हेलो, इज इट ओके? हाँ मैम। या हु इज इट, मे आई नो द नेम? ऋषिकेश दीक्षित मैम। ओके ऋषिकेश, नो प्रॉब्लम। आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे चैट बॉक्स में इनबॉक्स में डाल दो, ठीक है। चैट हाँ बॉक्स में हाँ मैं आपका सोल्यूशन हाँ ये करके भेज दूंगी, एंड फिर बाद में हम लोग वापस जब सेशन रहेगा, आई विल टेक दैट टॉपिक और हम लोग उस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।
ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आप सब लोगों ने निकाल लिया, इसका एक पिक्चर निकाल लिया, फोटो निकाला? Yes. Yes. Great. So let's move ahead. Okay. So this is coding decoding thing. Okay. So coding decoding के questions में आपको क्या करना है? This is the trick what I am saying. Okay. शायद ऋषिकेश ने ही स्टार्टिंग में बोला था कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के बारे में. तो इट्स अ स्मॉल ट्रिक. व्हाट आई एम टेलिंग यू इज whenever you start your exam, so exam start होने के बाद आप रफ पेज पे ये लिख के रख सकते हो वहां पे with due permission of that supervisor. Okay. या फिर जब आपको एग्जाम शुरू होगा और आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो आप वहां पे आपके रफ पेपर के आपके रफ पेपर पे आप ये लिख के रख सकते हो, ऐसा स्ट्रक्चर. ओके. वाई मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है, बट अभी तो आपको इसका एक पिक्चर निकाल लो. ठीक है, जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ इट. ले लिया पिक्चर स्टूडेंट? यस. ओके. तो हमें ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब भी कोडिंग, हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी? तो हम लोग डिस्कस करें स्टूडेंट्स? यस मैम. तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो अगर हम लोग एक एक अल्फाबेट को सोचते बैठे तो इट विल टेक अगेन योर टाइम. तो अगर आपके सामने ये रेडी चीज रहेगी ना, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? मोस्ट प्रोबेबली अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी, अगर आप ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करके रखो या फिर आपके रूम में कहीं पे अगर सामने चिपका के रखो ना, सो यू विल मेमोराइज इट. तो एग्जाम में फिर आपको शायद लिखने की भी जरूरत ना पड़े इन चीजों को. एंड माइंड इट, कोडिंग डिकोडिंग के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर ये चैप्टर्स अगर अच्छे से कर ले तो हमारे 5 से 7 मार्क्स, 5 to 7 मार्क्स वी कैन अर्न. ओके. और इसके क्वेश्चन गलत भी नहीं होते हैं. ओके. उसके अगर आप ये प्रॉपर वे में इसे सॉल्व करोगे तो इसके क्वेश्चंस करेक्ट ही आते हैं. ठीक है? इज इट ओके? यस. So let's practice it. Okay. हेलो मैम. Yes. मैम इतना तो मैं आपको बताऊं कि ABC इतना लिखा ना आपने, इतने जरूरत नहीं मैम एग्जाम लिखने की. ये जो OTY लिख के इसका नंबर इन लिख के साइड बाय साइड भी आता है मैम, इतने लिख की जरूरत नहीं मैम. It's up to you ऋषिकेश. I mean किसी को जरूरत होती है, किसी को जरूरत नहीं होती है. ठीक है. So it's up to you. Okay. आप like if you have memorized it या फिर आपको पता है और या फिर you are good in it, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. बट जो लोगों के पास अभी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम नहीं लिया है, so they can write it down. Okay. And they can practice it in your own way. It's good that you don't need it, but जिन लोगों को है, you can, you know, they can practice like this. Okay. So now see, these are the kind of questions which comes in the part of coding and decoding. Okay. So coding decoding में कैसे questions आते हैं? For example, in certain code, tiger is written as QDFSH. So how fish is written in that code? So यहाँ पे क्या किया है questions में? So reversible order में ये कोड लिखा है, और रिवर्सिबल ऑर्डर में क्या किया है अगर अभी हम लोग देखें यहाँ पे, सो रिवर्सिबल ऑर्डर में क्या किया है कोड? ओके. सो फर्स्ट लेटर यूज किया है. ओके. उसके पहले वाला लेटर यूज किया है, राइट? तो जैसे कि आर के लिए, या फिर रिवर्स में अगर देखें कि टी के लिए एस पहले वाला, ओके, आई के लिए एच, जी के लिए एफ, ओके, ई के लिए डी एंड आर के लिए क्यू. सो रिवर्सिबल ऑर्डर में और एक पहला लेटर उससे पहले आने वाला लेटर लिखा है, राइट? सो सेम वे में फिश के लिए क्या कोड हो जाएगा? जैसे कि टी के लिए जो लेटर होगा वो उन्होंने यहाँ पे लिखा था, राइट? सो टी के पहले वाला लेटर, सो एफ के पहले वाला लेटर कौन सा आएगा, या एफ के बाद वाला लेटर कौन सा आएगा? तो जी आएगा मैम. राइट. तो जी तो सारे ही क्वेश्चन में आ रहा है, राइट?
देन बाकी राय के व्हाट कैन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? E. हाँ, ओके आया समझ में कि क्यों हमें अभी ये अल्फाबेट्स अगर हमारे आपके सामने हो, ओके सो इट हेल्प्स, राइट? अगर ये दोनों स्लाइड्स अगर अभी साथ में हम लोग खोल दे तो वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। आया समझ में? नाउ Yes. देयर आर सम डिफरेंट क्वेश्चंस लाइक दिस, जैसे कि रोज इज कोडेड एज 682। मैम आंसर क्या है इसका मैम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? या सो कैन यू टेल मी ऋषिकेश व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन ये 4 आएगा ना मैम? जी 4 ही। यस यस ऋषिकेश, ऑप्शन 4 आएगा ना, ये ऑप्शन 4 लिखा है ना, जी 4 ही। 4 ऑप्शन 4। हाँ, और किसी को बताना है व्हाट कैन बी द आंसर फॉर इट? GRHE. GR सो ऑप्शन नंबर सेकंड ये आएगा। हाँ. ओके so it will be option, no, it will be option 4, GHRE. okay आया समझ मैम में? करेक्ट है ना मेरा? मैम करेक्ट है ना मेरा? यस करेक्ट है मैं ऋषिकेश। 4 बताया ना आंसर? हाँ यस ऑप्शन जो 4 है ना, जी 4 ही है ना आंसर, इसका आंसर? यस 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 दैट इज द ऑप्शन। ओके सो ऐसे ही वे में आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके सिर्फ आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे लिखे हैं। ओके जैसे कि अभी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसको रिवर्सिबल ऑर्डर में N के लिए O लिखा है, E के लिए F लिखा है, ओके Z के लिए A लिखा है। I mean उससे रिवर्सिबल ऑर्डर में पहला उसके पहले वाला क्या आएगा क्वेश्चन वो लिखा है, राइट? उसके बाद है जैसे कि मोल्टन। ओके सो विल स्टार्ट जैसे कि N के लिए जो कोड है वो यहाँ पे आया है, सो सेम वे यहाँ पे N के लिए कोड जो है यहाँ पे आएगा। सो राइट O से स्टार्ट होगा, सारे O से स्टार्ट हो गए। E के पहले क्या आता है? ओके व्हाट इज द लेटर फॉर E? E के पहले क्या आता है? सो इस वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है, बट इसमें जैसे यहाँ पे पहला वाला लेटर लिया था, यहाँ पे बाद वाला लेटर लिया है, यहाँ पे बाद वाला लेटर लिया है, राइट? सो ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे अल्फाबेट्स को नंबर्स दिए गए हैं, राइट? जैसे कि अभी फिर जब हम लोग ये ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें क्या देखना है? कॉमन अल्फाबेट कौन से है। सो जो कॉमन अल्फाबेट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे R इज अ कॉमन अल्फाबेट इन दो वर्ड्स में, सो ये नंबर्स में कौन सा कॉमन नंबर आया है वो हमें देखना है। सो कौन सा कॉमन नंबर है जो इन दो नंबर में आया है? दैट इज 6। दैट मीन्स R के लिए 6 ये वर्ड ये नंबर यूज हुआ है, राइट? सो यहाँ पे भी देखते हैं, जैसे ये 3 वर्ड्स है, ये 3 वर्ड में एक अल्फाबेट है R जो कॉमन है, एक नंबर कौन सा कॉमन है? 6। सो दैट मीन्स R के लिए 6 हुआ है। सेकंड का आंसर 2 आया ना मैम? देखो ना, हेलो मैम, हेलो ऋषिकेश इसका आंसर 2 है ना? हाँ ऋषिकेश 2 है ना आंसर? ऋषिकेश वेट अ मिनट, टेक अ डीप ब्रेथ, वेट। सॉरी मैम। No, it's okay. Completely fine. You can solve those question. अभी हम लोग सिर्फ एक नेक्स्ट वाला पैटर्न देख लेते हैं कि कैसा होता है, ठीक है? You can solve the question. You can inbox me, chat box में आप मुझे आंसर डाल दो, मैं आपको बता दूंगी what is the answer और उसका explanation भी दे दूंगी, ठीक है? So जब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको क्या देखना है कि कॉमन नंबर्स क्या यूज किए हैं और कॉमन अल्फाबेट्स क्या है, ठीक है? जैसे कि प्रिच और चेयर में C इज कॉमन अल्फाबेट,
तो कॉमन नंबर देखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम 6. कॉमन नंबर कौन सा आया है? 7 इज ऑल्सो अ कॉमन नंबर, राइट? तो यहाँ पे 7 भी आएगा इसमें. तो ऐसा करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? गेटिंग इट? Yes. ओके. सो आज हम लोगों ने 2 चैप्टर्स का प्रैक्टिस किया है स्टूडेंट्स, ठीक है? सो वो 2 चैप्टर्स है, वो 2 हमारे चैप्टर्स है कोडिंग एंड डिकोडिंग और डिविजिबिलिटी टेस्ट. सो आपको अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम व्हेन विल मीट हम लोग और कुछ नए चैप्टर्स लेके आएंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग सो एक्टिव, okay, for being so responsive. And Rishikesh, I really like your, the way you are interacting and the way you really want to know the things. So you can, आप WhatsApp ग्रुप में हो? जो हमारा WhatsApp ग्रुप है प्रिपरेटरी क्लास का? हाँ है वो मैम. ओके, तो आप कौन से ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 कौन से ग्रुप में हो? तो आप उसमें भी, उस ग्रुप में भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, या फिर आपका ये जो क्लास है इस क्लास में भी अगर आपको कोई क्वेरी है यू कैन पोस्ट द क्वेरीज हियर एंड आई विल गिव द एमसी सीईटी अवेयरनेस 2 में हूँ मैं. ओके, ठीक है. तो आप वहाँ पे भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो. आई विल सॉल्व योर क्वेरीज. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. सो वी हैव टू स्टॉप हियर टुडे. सो we'll meet next time and we'll come with more topics and tricks. Okay, so keep practicing till the next time we meet. Okay, thank you so much and over to you, Bhavna ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, I guess Sakshi has some questions. She has raised her hand. Sakshi, are you there? Do you have any queries? Sakshi Chakri 2012200. I guess also has some questions. Pranali Nikam. So कुछ questions है किसी को? Pranali, Sakshi. मैम नेक्स्ट टाइम डिस्टेंस एंड टाइम हो गया. Okay, next time distance and time. Okay, we'll take questions. We'll take session on it. Don't worry. Okay. थैंक यू मैम. Yes. Yes. Sakshi, are you there? Do you want to ask something? I think she is not there. Sakshi, if you are there, if you are having any difficulties, please put it in the chat box, or you can also message on the WhatsApp group. Okay. So moving on. Thank you, ma'am, for your informational slides. I am sure our students are clear how to solve the paper quickly with the tips and tricks, and will surely help them in their exams. Here's a small video for you all. This is an activity we have planned for nationwide, so please enjoy.